when you apply a force and when it changes the shape and size, such a force is called as deforming force. Now, depending on how that force is acting and what kind of deformation it is, we have classified that stress and strain into three categories. So these were the terminology which we studied: rigid body, non-rigid body, elastic body, plastic body, deforming force, restoring force, stress, strain, Hooke's law. And so Hooke's law states load is proportional to strain. That load is measured as stress, that extension is measured as strain. The stress is proportional to strain, or stress can be called as the proportional constant that is called as modulus of elasticity. The stress can be written as modulus of elasticity into strain. Now, depending on how that force is acting, we can have three kinds of stress. We can have longitudinal stress. So when it is acting perpendicular to the area. We can have shear stress when it is acting parallel to the area. We can have volume stress when it is acting throughout the volume, throughout the complete surface area of that body, right? Similarly, we can have three kinds of strain. Longitudinal strain, that means when the length changes. We can have shear strain, that means when the body's shape changes, the lines get rotated by angle theta. And we can have volume strain, that means when the volume changes, right? These are the terms. And then we studied, we were studying the first one, longitudinal stress and longitudinal strain. So uska formula derive kiye, longitudinal stress F by A. Here is my pointer. I hope all of you are able to see my pointer. Longitudinal stress F by A, Young's modulus Y, longitudinal strain delta L by L. So from here, delta L comes out to be FL by AY, right? Delta L comes out to be FL by AY. So I said you remember this formula because most of the time they will ask delta L. And you also remember this formula so that you can compare it with a spring. Like for a spring F equal to Kx, here F equal to Ya by L into delta L. So that K, so here Ya by L, that takes the place of K spring constant. ये दो formula याद किए हो क्या? Now we are supposed to solve questions related to those formula. Yeah. So I said how to solve question. So delta L equal FL by AY. You think that F has internal tension developed. So if tension, if area, if Young's modulus, if they are constant throughout the length, then you can use delta L equal FL by AY directly. Otherwise, we have to do integration of TdX by AY. So then we solved two questions. एक था मासलेस रॉड पे M लटका हुआ था, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम था, तो यहाँ पे सीधा डेल्टा L इक्वल FL by AY लगा दिए. और ये था रॉड था, थ्रू आउट मास है इसका, तो थ्रू आउट टेंशन सेम नहीं है, टेंशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट. तो इसका डेल्टा L निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन TdX by AY किए. So it came out to be MGL by 2AY. So here questions look similar, but there is little difference. यहाँ पे पूरे रॉड का मास है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रॉड, यहाँ पे मास सिर्फ एंड पे लगा हुआ है. इसके कारण यहाँ पे डेल्टा L इक्वल MGL by AY, यहाँ पे MGL by 2AY. Hope you understood the difference. Yes. So now we will continue from here. तो यहीं से हम आगे चलते हैं. चलो, तो let's solve questions basically. तो theory almost we have studied. So we have almost studied the theory that delta L equal to FL by AY, है ना, or delta L equal integration TdX by AY. Now let's solve questions. So question लिखो. Questions are simple. Here is a person. The person has two legs. Its mass is 80 kg, and then he is holding a suitcase of 120 kg. So there are bones in his leg. Now the bones, their length is, let's say, 2 meters, imaginary values, and its Young's modulus, let's say 4 into 10 to the power 6. Unit क्या होगा Young's modulus का? Pascal. And then let's say उसका जो एरिया जो है ना, कितना एरिया हुआ होगा बोन का let's say 2 into 3, 6 centimeter square बोन का एरिया. फाइंड. तो ये each बोन, मतलब राइट लेग है जे बोन एंड लेफ्ट लेग है जे बोन, राइट. तो ये एक बोन का. So what you have to find out? You have to find stress in the bone. Stress निकालो. And you have to find
delta L, change in length of boom. ये है रॉड नंबर 1, ये है रॉड नंबर 2. Find elongation of each rod. Second, find displacement of point 1 and 2. Find displacement of each point. करो. So here normal reaction, here n, here n. So 2n will be how much? 2n will be 200 kg. Its mass is 200 kg. तो total mass है ना, total को अगर system मान लेंगे तो 2n is mg, 200 into 10. So n is how much? So n is 1000. So n is 1000. अच्छा, तो 1000 न्यूटन लग रहा है हर पैर के ऊपर. तो स्ट्रेस फिर कितना होगा? स्ट्रेस होगा ये 1000 न्यूटन बाय एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर मींस 10 to the power -2. So this is 10 to the power -4. So this comes out to be 1000 by 6. How much it is? 500 by 3. So 500 by 3, 500 by 3 into 10 to the power 4. So this comes out to be 1.66 into 10 to the power 6. This is the stress. Have you got this much? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन पूछा नहीं है ना. अच्छा छोड़ो, स्ट्रेस पूछा है. नेक्स्ट इज चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो चेंज इन लेंथ होगा डेल्टा एल इक्वल टू FL by AY. चलो FL by AY. तो हाउ मच इज F? F it's like 1000. L is 2. A is 6 into 10 to the power -4. Y it's 4 into 10 to the power 6. अच्छा, तो this comes out to be कितना? 10 to the power 6, 10 to the power 4, तो 10 to the power 2. और फिर ये दोनों कट गया. So we have a 2 and then we have a 3. So this is 10 by 3. Sorry. 0.83, right, sir? 2 into 5, 2 into 2. So we have 5 by 6. So this comes out to be 0.8. Yeah. अच्छा, तो find elongation of each rod. तो प्रथम रॉड टाको देखो, प्रथम रॉड टेंशन केते हिथिबो? तो प्रथम रॉड गोटे पार्ट को जदी नबो, देखो ए साइड F1 लागुची, तो जदी एडी टेंशन T डेवलप हेची तो T1 जदी डेवलप हेची धरिबा तो से रॉड तो रेस्ट अछि. एथु कोन जणा पड़ला T1 केते? तो T1 डेवलप हेची F1. T1 होची F1. तो फर्स्ट रॉड ताहले T1 डेवलप हेची F1. सेकंड रॉड पय एडी हम जदी गोटे सेक्शन दि नेबा आ तार जदी फ्री बॉडी डायग्राम करिबा ताल देखो एडा हम जदी गोटे सेक्शन नेकी जदी फ्री बॉडी डायग्राम करिबा एडा F1 लागुची आ एडा F2 लागुची. तो एडी जदी टेंशन T2 ताल देखलो T2 केते? तो T2 डा होची F1 plus F2. See, the tension is not same throughout. The tension is different at different cross sections. If you take a cross section in rod 1, the tension is F1. But if you take a cross section in rod 2, then it is T2. Then the tension is F1 plus F2. Is that point clear? Yes, sir. So here Yes, for sir. the complete rod, you directly can't find delta L. You have to find delta L for each rod separately and then do add. So for the first rod, let's call it as delta L1. It will be FL by AY. So here it will be T1 L1 T1 L1 by AY.
A1 is F1 L1 by A1 Y1. This is the elongation of the first rod. As a elongation of the second rod, delta L2 will be it's FL by AY again. So here F will be F1 plus F2. L will be L2 by AY. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now तो rod 1 का elongation होगा delta L1, rod 2 का elongation होगा delta L2. Now he is asking displacement क्या होगा हर point का. तो देखो point 2 का displacement जो होगा उतना ही होगा जितना rod 2 का elongation है. तो point 2 का displacement होगा कितना? जितना second का elongation है, isn't it? Second Yes. rod का elongation कितना? It's F1 plus F2 into L2 by A2 Y2. तो यही होगा point 2 का elongation. लेकिन point 1 का elongation कितना होगा? point 1 कितना आगे जाएगा? point 1 का Addition of elongation both. होगा Addition of Yeah. L1 and L2. delta L1 plus delta L2. So that comes out to be how much? Delta L1 plus delta L2. That comes out to be how much? दोनों को ऐड कर लो तो ये आ रहा है F1 L1 by A1 Y1 plus F1 plus F2 L2 by A2 Y2. Next question. Here you have a rod. Here you have a rod. This rod is lying on ground, and then someone is pulling it. And then someone is pulling it with force F. Its mass is M. Its length is L. Its area is A. Cross-sectional Young's modulus is Y. Okay. So there is no friction. There is no friction. Achha. So what do you think will happen to this rod? Will it accelerate? Will it accelerate? Yes. Yeah. So how much is the acceleration? That's the first question. F by M. Yeah. Second question. एक काम करो, इसका ये एंड से x डिस्टेंस पे ये पॉइंट पे टेंशन कितना होगा निकालो. यहाँ का टेंशन कितना होगा निकालो. दैट्स सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट फाइंड टेंशन at a distance x. At a distance x from end. थर्ड पॉइंट. ओके, आपको पता चल गया कि x हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा, तो पूरे रॉड का एलोंगेशन निकालो. फाइंड एलोंगेशन ऑफ द रॉड. See, in the exam he could have directly asked you the question, find elongation of the rod. Then you would have you would have to do through these steps only. Elongation FL by 2AY. अच्छा, तो ତମମାନଙ୍କର आंसर ତାହେଲେ acceleration ଆସିଲା f by m. Yes, sir. ଆଉ ये କେତେ ଆସିଲା? टेंशन କେତେ ଆସିଲା x distance रे? fx by l ଆସିଲା कि? Yes, sir. Yes, sir. elongation पूरा इंटीग्रेशन कर सला ପରେ ଆସିथिबो fl by 2ay. Yes, sir. Yes. Samila, have you got this much? Last step करें. So here a small l is the variable distance, right? Small l is the total length of the rod. FLL when we took, right? So total length is? Total length is small l. Take x distance पे dx एलिमेंट लेना होगा, है ना? हाँ. उस dx एलिमेंट का elongation लिखना होगा. Elongation of dx. Elongation of dx कितना होगा? Elongation of dx होगा tdx by ay. तो elongation of rod यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे elongation of rod करना होगा integration tdx by ay. Yes. So after doing that, you will get that fl by 2ay. fl by 2ay. आया? एक बार वो ये दिखा दें, टेंशन निकला कैसे वो दिखा देना. टेंशन कैसे हुआ? अच्छा,
This is the end of the rod. From here at a distance x हमें tension चाहिए. Let the tension T, let its mass be m dash. So now this is moving with some acceleration f by m. So applying Newton's second law, equation for this will be f equal to ma. m कितना, m dash है, m dash कितना, ये है mx by l यूनिटरी मेथड से. a कितना, a is f by m. तो multiply it. So this comes out to be how much? fx by l. ठीक है? Yes, yes. Okay. So now come to the next question. So next question. Here was a rod. Here was a rod. Not rod, wire. Wire. Its length was 2L. And its area of cross section, let's say A, its Young's modulus, let's say Y. Its Young's modulus Y. Now a weight is hung. A weight is hung from the top. So this rod becomes like this. Not rod, wire. This becomes like this. It comes down by an m of x. क्यों? Because यहाँ एक weight लगा दिए m mass का, इसलिए वो नीचे आ गया, है ना? तो इनिशियल उसका लेंथ 12 था, फाइनली वो ऐसा हो गया. तो क्वेश्चन है कि फाइंड एलोंगेशन, फाइंड x. वो x कितना निकालो. See how to solve such kind of question. It's simple. Now the body is at rest. Now the body is at rest. तो न्यूटन्स लॉ, पहले जैसे न्यूटन्स लॉ लगा था ना, बॉडी इज एट रेस्ट, तो फ्री बॉडी डायग्राम करके नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर लो. वो एक इक्वेशन हो गया. और दूसरा इक्वेशन ये चैप्टर में जो पढ़े हो, स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन. तो ये दो इक्वेशन को लेके सॉल्व करके x निकालने की कोशिश करो. ट्राई. पहले इक्वेशंस लिखो. इक्वेशंस लिखो. एक इक्वेशन लिखो न्यूटन्स लॉ लगा के, नेट फोर्स इक्वल टू 0, है ना? दूसरा लिखो स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन. फिर देखो वो दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे कि x निकले. तो एक इक्वेशन तो होगा कि बॉडी इधर है, mg इधर है, टेंशन इस तरफ और एक टेंशन इस तरफ, ये थीटा ले लो. तो एक इक्वेशन तो होगा नेट फोर्स इक्वल टू 0 होना है ना. तो 2t sin थीटा इक्वल टू mg होना है. ये एक इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन होगा स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन. अच्छा, तो स्ट्रेस इसमें क्या होगा? स्ट्रेस होगा t by a, isn't it? t by a इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन. स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन होगा डेल्टा l by l. तो वो डेल्टा l, सी दैट डेल्टा l इज नॉट x, x इज समथिंग डिफरेंट. तो वो अब डेल्टा l निकलना होगा. तो चलो कैसे निकालेंगे. देखो ये जो ट्राइंगल जो बना है ना, in this triangle if you see, this is L, this is x, so this is root over of L square plus x square. इसमें डेल्टा L कितना? इसमें डेल्टा L जो है वो है root over of L square plus x square minus L, isn't it? तो फिर इसमें डेल्टा L by L क्या है? डेल्टा L by L, इसको डिवाइड कर लो. तो ये हो गया root over of 1 plus x square by L square minus 1. So that is equal to 1 plus x square by L square to the power half minus 1. That is equal to 1 plus x square by 2L square minus 1. That's equal to x square by 2L square. ये है स्ट्रेन. आया? So this can be written as t by a equal to yx square by 2L square. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब ये दोनों को सोल्व करेंगे. अच्छा, अभी भी थीटा है, तो चलो हटाओ उधर से, साइन थीटा कैन बी, so we have taken this as theta, so this as theta,
अच्छा, तो sin theta equal to tan theta equal to x by l. तो this can be written as 2t sin theta equal to tan theta equal to x by l equal to mg. क्या चाहिए हमें? What do we want? What we want? We want x ना? Hello? Yes, sir. Yes, sir. We don't want t. तो डिवाइड कर लो, t कैंसिल होके बाकी सब आ जाएगा. तो चलो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, 1 बाय 2, दैट गिव्स अस यहाँ पे 2t x by l है और ये t by a है, तो वो कैंसिल हो जाएगा t और t, ये हो जाएगा 2xa by l, 2xa by l हो जाएगा इक्वल टू ये है mg और ये है y स्क्वायर बाय 2l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mg 2l स्क्वायर बाय yx स्क्वायर. ओके, तो फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन हैव x क्यूब a बाई l इक्वल टू mg l स्क्वायर बाई y. सो x क्यूब इक्वल टू mg l क्यूब बाई ay, तो x इक्वल टू mg बाई ay to the power 1 by 3 into L. Have you got this much? आ रहा है क्या इतना? सर एक्चुअली मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टार्ट किया था. आपने जो थीटा लिया है वो मैंने उसे 90 माइनस थीटा मतलब अंदर वाला एंगल थीटा लिया था. चलेगा चलेगा. तो व्हाट आई डिड वाज जो न्यूटन्स लॉ जब अप्लाई किया तो स्क्वायर एंड ऐड वाला फॉर्मूला यूज करके साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हटाकर टी फाइंड आउट किए. कॉस थीटा कहाँ पे आया था आपका? मतलब टी कॉस थीटा दिस साइड इज इक्वल टू टी कॉस थीटा द अदर साइड, राइट? तो कैंसिल हो गया ना, टी कॉस कैंसिल हो थीटा. जाएगा. इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वेशन से वर्टिकल डायरेक्शन का ही बनेगा. So 2t sin theta won't be equal to 0, right? कैंसिल हो जाएगा. नो, तो फिर आपका इक्वेशन होना चाहिए था टी sin थीटा कैंसिल हो जाएगा राइट लेफ्ट का. ऊपर का आपका इक्वेशन होना चाहिए था 2 cos थीटा इक्वल mg, और cos थीटा को आप वही डालते जो मैं वहीं sin से थीटा. निकालने थे. ओके सर, हम इसे दोबारा करते हैं. तो लॉजिक यही है कि क्या हो रहा है जी. एक इक्वेशन जो हम न्यूटन्स लॉ से यूज कर रहे थे वही इक्वेशन यूज कर लेते हैं, और दूसरा अभी जो स्ट्रेस इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन. तो इन दैट सेंस अगेन आवर थिंकिंग ऑफ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिमेंस सेम. वही जो न्यूटन लॉ में अप्लाई कर रहे थे वही यूज करने का. वही जो इंटरनल टेंशन T जो निकालते थे दैट बिकम्स इंपोर्टेंट हियर. वो T यहाँ पे इंपोर्टेंट हो जाता है, वो T के कारण ही एलोंगेशन. तो FL/AY में वही T को लाके डालते हैं हम बेसिकली. जी जी. तो चलो इसी तरह का और एक टफ क्वेश्चन करते हैं, वही इंटरनल T निकाल के. लेट्स से दिस इज ए रिंग, इसका मास डेंसिटी लैम्डा है और इसका रेडियस जो है ये r है, एंड इट्स रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना. तो अब देखो ये क्वेश्चन आप हम किए थे, फाइंड t इन द चेन और t इन द रिंग. ये रिंग में t निकालना आता है क्या? लैम्डा क्या है? वो मास डेंसिटी. मास पर यूनिट लेंथ. पहले t निकालो, और t अगर निकल गया तो फिर उसका यंग्स मॉडुलस y है, y यंग्स मॉडुलस है, और a उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो फिर उसका डेल्टा L बाई L निकालो. चेन का स्ट्रेन कितना होगा, फाइंड स्ट्रेन. चेन का वो लंबा हो रहा है ना,
या सर फिर फाइंड, चेन रेडियस से जॉइन है या फिर लाइक सर्कुलर चेन है? ये एक सर्कुलर चेन है, सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग। रेडियस कितना चेंज होगा, स्ट्रेन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ये सब निकालो। सारे क्वेश्चन चालू होंगे टेंशन निकालने से। वहां तक न्यूटन्स लॉ वाला क्वेश्चन है, उसके बाद ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन है। सर टी टेंशन लैम्डा के टर्म्स में भी लाएंगे ना? हाँ, लैम्डा के टर्म्स में आएगा, लैम्डा So- ओमेगा आर, वही टर्म्स में सारे आंसर्स आएंगे। थीटा भी आएगा, लाइक हाउ मच? थीटा नहीं आएगा, थीटा नहीं आएगा। थीटा नहीं आएगा, अच्छा। चलो सबसे पहले टी निकालो। टी निकालने के लिए कैसे करना होगा, एक छोटा सा सर्कुलर एलिमेंट कंसीडर करना होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम करना होगा, और वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखना होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल एम ओमेगा स्क्वायर आर, उससे वो निकल के आएगा। सर टेंशन लैम्डा डेल्टा एल आर ओमेगा स्क्वायर होगा। डेल्टा एल तो नहीं रहेगा। सर मास के बदले वो देखो, डेल्टा लेट मी एम। सॉल्व, लेट मी सॉल्व। देखो ये एक सर्कुलर रिंग है ना, ये सेंटर है। अब इसका आप ये डी थीटा वाला पार्ट कंसीडर करो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट अगर कंसीडर करोगे तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इसके ऊपर इस तरफ टेंशन लग रहा है टी, और इस तरफ टेंशन लग रहा है टी, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से डी थीटा बाई 2 पे इंक्लाइंड है, ये भी डी थीटा बाई 2 और ये भी डी थीटा बाई 2, क्योंकि ये ईच एंगल डी थीटा बाई 2 और डी थीटा बाई 2 है। समझे? हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम? सर एक और बार एक्सप्लेन कर। हाँ हाँ हाँ, ये रिंग का एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट ले लिया जिसका एंगल डी थीटा है। तो ये दिस इज लाइंग ऑन ग्राउंड, ये टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ही गिरा है और ये रोटेट हो रहा है ऐसा। तो एक एलिमेंट ले लिया, तो दिस एलिमेंट इज मेकिंग एंगल डी थीटा, है ना। तो ये एलिमेंट के ऊपर इस तरफ टेंशन लग रहा है और इस तरफ टेंशन लग रहा है, इजंट इट? दोनों साइड टेंशन सेम ही होगा ना, हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। लेकिन यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन इस तरफ लग रहा होगा। वो हॉरिजॉन्टल से अगर देखोगे, मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है, लेकिन ये टेंजेंट से अगर देखोगे, ये वाला टेंजेंट से अगर आप देखोगे, तो ये डी थीटा बाई 2 पे होगा और ये भी डी थीटा बाई 2 पे होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये डी थीटा बाई 2 है, ये रेडियस जो है ये रेडियस को परपेंडिकुलर है, और ये वाला रेडियस को परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस, ये ग्रीन वाला रेडियस से डी थीटा बाई 2 रोटेट हुआ है, तो ये टेंजेंट से डी थीटा बाई 2 रोटेट हुआ होगा। सर इसका ये मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा चेंज अगर करता होगा तो टेंशन डिफरेंट होगा। क्या नहीं, टेंशन डिफरेंट क्यों होगा? टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि सिमेट्रिकल रिंग है। बट सर लाइक हमारे पास लैम्डा है, राइट? हाँ, लैम्डा है। मास पर नहीं यूनिट नहीं, लेंथ। फ्री बॉडी डायग्राम में तो यही होगा ना। नाउ वी हैव ओनली डन अप टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, इट्स लाइक चूज द सिस्टम, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, चूज कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट इक्वेशन, है ना। हाँ So we हाँ। only have chosen the system. Okay, this is our system, and draw free body diagram. So this is the free body diagram. Yeah, now mg is acting into the board. Into the board mg is acting. Yes. इसका मास हम लिख सकते हैं कि ये dm है, इसका मास हम लिख सकते हैं कि ये dm है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है इनटू द बोर्ड, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू लग रहा है, Yes. और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर लग रहा है, like this, isn't it? Yes sir. Okay, so now अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में तो नॉर्मल रिएक्शन और mg कैंसिल आउट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन इसका मोशन हो नहीं रहा है। वो t का देखो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, t का ये दोनों कैंसिल जो है वो ऐड अप हो जाएगा। तो टोटल फोर्स फिर सेंटर की तरफ कितना हो रहा है? 2t sin theta. Yeah, 2t sin theta. So the 2t sin theta is the net force towards center, and that much would be equal to m omega square r.
बिकॉज दिस पोर्शन इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होना चाहिए, नेट फोर्स इक्वल एम हो गया स्क्वायर आर, हो गया इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, वो होगा 2t साइन डी थीटा वो बाई जो 2। टी साइन थीटा का डायरेक्शन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बट या टुवर्ड सेंटर तो नहीं है ना? टुवर्ड सेंटर ही है ना। ये जो बॉडी जो है, ये जो बॉडी जो है, इसका नेट फोर्स को हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका सेंटर पे लग रहा है, वो तो दिखाने के लिए उसका कंपोनेंट वहां पे दिखा है, ओके ओके ओके। तो एज्यूम कर सकते हैं ना उसका सेंटर पे लग रहा है वो सारे फोर्स। जी। फोर्स हो गया 2t साइन डी थीटा बाई 2, है ना, 2t साइन अल्फा इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2, बिकॉज द एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अच्छा, डीएम को हम लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा आर डी थीटा, इजंट इट, लैम्डा इनटू डीएल, और वो वाला पोर्शन का डीएल कितना होगा, आर डी यस, थीटा। आर डी थीटा। क्या, तो देखो कितना हो गया फिर वो, तो डी थीटा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो टी आ गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये है टेंशन, तो इतना टेंशन लग रहा है, तो फिर डेल्टा एल बाई एल कितना, स्ट्रेन कितना हुआ होगा, स्ट्रेन हुआ होगा स्ट्रेस बाई यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस कितना हुआ होगा, टेंशन बाई ए वाई, टेंशन कितना आया है, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए वाई, ये है फॉर्मूला। गॉट इट, समझे क्या? यहाँ पे ओके एल क्या है, एल क्या है, yes, एल sir. इज द पेरीमीटर, एल इज द पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर के एलंग में स्ट्रेन लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, टी टेंशन लग रहा है, तो पेरीमीटर के एलंग में स्ट्रेन कितना हुआ होगा, डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, यहाँ पे एल एल कितना है बताओ तो, एल कितना है, पूरा लेंथ जो है पेरीमीटर वो एल 2 है, तो पाई एल आर। 2 पाई आर, करेक्ट। तो डेल्टा एल बाई एल कितना, डेल्टा आर बाई आर, एरर एनालिसिस याद है? यस सर। Yes, sir. तो डेल्टा आर बाई आर जो पूछा है वो भी क्या होगा, दैट इज सेम एज डेल्टा एल बाई एल, so that is same as lambda omega square r square by ay, इतना ही होगा। तो जो जो आप न्यूटन्स लॉ में सॉल्व कर चुके हो वो सारे क्वेश्चंस को हम फिर से सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक वहां पे जो टी जो था वहीं पे मान लेते हैं कि सिर्फ टी है, एलोंगेशन हो नहीं रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि ना, कहीं पे भी अगर टेंशन डेवलप हुआ है, रिस्ट्रेंट फोर्स डेवलप हुआ है, तो फिर वहां एलोंगेशन या कंप्रेशन हुआ होगा, और कितना, ना एफ एल बाई ए वाई, समझे? Yes, sir. सर चलो वो जो और एक टेंशन में एंगल डी थीटा बाई 2 हुआ, थोड़ा आप फिर से बोल दीजिए। तो this line and this line they are perpendicular ना, this line they are perpendicular, and this line and this line they are perpendicular, तो ये d Yes, थीटा sir. बाई 2 है, तो ये भी d थीटा बाई 2 होगा, समझे? आप ऐसे Yes, sir. सोचो कि L शेप्ड रॉड घूम रहा है, आप ऐसे सोचो कि ये L शेप्ड रॉड घूम रहा है, ये टेंजेंट यहाँ चला गया, तो ये रेडियस यहाँ चला गया, तो ये रेडियस जितना रोटेट हुआ ये टेंजेंट भी उतना ही रोटेट हुआ होगा। अच्छा, ये रेडियस d थीटा बाई Yes, 2 sir. रोटेट हुआ, तो ये भी d थीटा बाई 2 ही है। Yes, sir. Okay, let's go to next question. Question number 6. देखो वही पुराने क्वेश्चंस, वही पुराने क्वेश्चंस, याद आ रहा है? ये M1 है, ये M2 है, ये पूरे का लेंथ L है, L is length of rope, M1 is bigger, इसका एरिया A, Young's modulus Y. Question, find elongation of the rope. कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे सॉल्व करके T निकालते थे वैसे T निकालो,
और फिर FL/AY डाल देने का। यहाँ T हर जगह पे सेम है कि अलग है? यहाँ पे सेम है T, बिकॉज मासलेस पुली है इसको मासलेस रोप और पुली मान लिए हैं, तो T हर जगह पे सेम है, तो इधर इंटीग्रेशन करना नहीं होगा। करो, चलो। देखो यहीं पे काम आता है जो शॉर्टकट्स, क्योंकि अब क्वेश्चन तो हाँ न्यूटन सर। लॉ का है नहीं, तो अभी न्यूटन लॉ सॉल्व नहीं करना है। अब न्यूटन लॉ का जो कैलकुलेट करना है उसको शॉर्टकट मारना है और फिर उसको यूज करके ये चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो न्यूटन लॉ से हमें पता है कि टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होता है? G into m1 minus m2 divided by ना ना m1 ना plus ना m2 ना, और वो तो ए टेंशन होता है, 2m1 m2g by m1 plus m2 होता है। मास मल्टीप्लाई करना। वो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, FL/AY, और F के बदले क्या हो गया, ये कितना हो गया, ये होगा 2m1 m2g ये by m1 plus m2, ये हो गया FL/AY। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो m1 m2 by m1 plus m2 को रिड्यूस मास ही कहते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, यस। तो चलो आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तो बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन जो इसका इसी से आता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये इसका अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो फिर आप शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन का भी कर ही सकते हो, ऐसा ही है। बस y के बदले स्ट्रेस के, इसका F/A के बदले उसका F/A आएगा, इसका y के बदले उसका S आएगा, है ना, इसी तरह ही है। तो अब थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इसका स्प्रिंग के साथ, कंपेयर कर लेते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर वर्सेस स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग। लिखो, स्ट्रेचिंग ऑफ ए वायर वर्सेस स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग। चलो, ऑलरेडी आई हैव सेड यू, स्प्रिंग के लिए F इक्वल टू क्या होगा, kx, इसके लिए F इक्वल टू YA/L इंटू डेल्टा एल। तो जो उसका x है इधर डेल्टा एल है, जो उसका k है इसके लिए YA/L है, isn't it? अच्छा, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी अगर हाफ kx² है, तो फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ YA/L इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर होगा। तो दिस इज ए न्यू फॉर्मूला, रिमेंबर, this is called as potential energy stored in a stressed wire. Potential energy stored in a stressed wire. समझे? So let's stop here today.